اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قریب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ وہ ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری تعداد بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بامشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈ نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اتنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا تھا اور یہاں لا کر رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آ جاتا ہے۔ صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، کچھ نہیں۔ نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ جن نے رسی اور کلاڑی دے کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدمزاد آیا ہے اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے
और तुम्हारी कुल्हाड़ी जो तुम जंगल में भूल आए थे लाया है। ये सुनकर मैं डरा, लेकिन इतनी देर में वो बूढ़ा खुद ही अंदर चला आया और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उड़ गया। फिर उसी मकान में लाया जहाँ मैं और वो औरत 4 दिन तक रहे थे। इसके बाद औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, ये है तुम्हारा वो आशिक। वो बोली कि मैं इसको जानती भी नहीं हूँ कि ये कौन है। जिन ने कहा कि अगर तू सच्ची है तो मेरे सामने अपने हाथ से इसे कत्ल कर। औरत बोली कि अव्वल तो मुझ में उठने की ताबी नहीं, और अगर उठूँ भी तो एक बेगुनाह को क्यों कत्ल करूँ। फिर जिन मुझसे कहने लगा कि अच्छा तुम इसको कत्ल करो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा कि आप ही गौर कीजिए कि एक बेगुनाह औरत को कत्ल करके मैं अपनी आक़िबत क्यों ख़राब करूं। जिन गुस्से की हालत में था, उसने तलवार उठाकर पहले तो उस औरत के हाथ काटे और फिर गर्दन उड़ा दी, और फिर मुझसे कहने लगा, क्योंकि तुम्हारा जुर्म मुश्तबा है इसलिए कत्ल तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें बंदर बना देता हूँ ताकि एहतियात करो। मैं बहुत चीखा, रोया, पीटा, मगर उसने एक ना सुनी और मुझे बंदर बनाकर निकाल दिया। मैं 1 महीने तक इधर उधर फिरता रहा। आखिर एक दिन किनारे दरिया के पास पहुंच गया, जहां से जहाज़ किसी सिमत सफ़र करने को तैयार था। मैं भागकर जहाज़ में सवार हो गया। अहले जहाज़ मुझे मारने दौड़े। मैं परेशानी की हालत में जगह जगह सर छुपाता फिरता था। शोर और गुल सुनकर कप्तान आ गया। मैं उसके कदमों में लिपट गया। उसको मेरी हालत पर रहम आया और मुझको अपने पास रख लिया। जहाज़ कुछ दिन सफ़र करता रहा। इस दौरान मैंने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि जहाज़ के कप्तान की खिदमत करता रहा। आखिर जहाज़ किसी बंदरगाह पर पहुंचा और वहीं लंगर डाल दिए। अभी लोग जहाज़ से उतरने नहीं पाए थे कि कुछ आदमी वहाँ के बादशाह की तरफ से जहाज़ पर आए और कहने लगे कि हमारे मुल्क का वज़ीर मर गया है और बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपना वज़ीर उस शख्स को मुकर्रर करूँगा जो पहले वज़ीर आज़म की तरह खुशनवीस होगा। इसलिए आप में अगर कोई साहब अच्छा लिखना जानते हैं तो हमारे साथ चलें और बादशाह से मिलें। ये कहकर उन लोगों ने कुछ कागज़ और कलम दवात निकाली ताकि अगर कोई शख्स चलने को तैयार हो तो पहले उसका इब्तिदाई रस्मुल ख़त देख लिया जाए। मैं ये कार्रवाई देख रहा था। मैंने उचक कर उनके हाथ से कागज़ ले लिया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो समझे कि अब ये कागज़ फाड़ देगा, इसलिए मुझे मारने दौड़े। लेकिन कप्तान भी मेरे खसाइल से वाकिफ़ हो गया था। कहने लगा, सब्र करो और देखो कि ये क्या करता है। मैंने कलम दवात ली और बैठकर इत्मीनान से उस कागज़ पर चंद शेर लिखे। सब लोग मेरी हरकतों पर हैरान थे। मैंने वो कागज़ बादशाह के कारिंदों को दे दिया। वो मेरी खुशखती देखकर अंगुश्त बदंदा रह गए और मुझे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कुल माजरा बयान किया। बादशाह बहुत खुश हुआ और मुझे अपने पास रख लिया। मैंने बादशाह की शान में कुछ कसीदे लिखे और पेश किए। दरबार के सब आदाब और ताज़ीमात मैं उसी तरह बजा लाता था जैसे दरबारी लोग अदा करते थे। बादशाह और सब लोग मेरी हरकतों से मुताज्जिब थे। एक रोज़ बादशाह मुझे अपने साथ जनान खाने में ले गए ताकि ख़वातीन को भी मेरे कमालात दिखाएं। जिस वक्त मैं अंदर गया तो शहज़ादी ने फ़ौरन पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी, आप नामहरम को क्यों घर में ला रहे हैं? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा कि यहाँ कौन गैर है? शहज़ादी कहने लगी कि ये बंदर जो आपके साथ आ रहा है हैवान नहीं बल्कि इंसान है और किसी ने जादू करके बंदर की शक्ल बना दी है। बादशाह ने कहा, क्या तुम इसको असली हालत में ला सकती हो? शहज़ादी कहने लगी कि जी हाँ, ज़रूर। बादशाह बोला, फिर कोशिश करो। शहज़ादी ने उसी वक्त एक हिसार बनाया और उसमें बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक गुबार सा छा गया और उसके बाद वही जिन सामने आ खड़ा हुआ जिसने मुझे बंदर बनाया था। शहज़ादी ने कहा, जिन से मलून, तुमने वो कसम तोड़ दी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खाई थी। और फिर शरारत शुरू कर दी।
वो जिन कुछ न बोला और शेर की शक्ल बनकर शहजादी पर हमला आवर हुआ, लेकिन शहजादी पहले ही तैयार थी। उसने फौरन तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। इसके बाद वो बिच्छू की शक्ल में सामने आया। शहजादी सांप बनकर लड़ने लगी, बिच्छू उकाब बनकर उड़ने लगा, फिर शहजादी उकाब स्याह बनकर पीछे चली। दोनों नजरों से पोशीदा हो गए। थोड़ी देर के बाद जमीन शक हुई और उसमें दो बिल्लियां लड़ती हुई निकली। यकायक एक बिल्ली भेड़िया बनकर दूसरी पर झपटी। वो बिल्ली एक छोटा सा कीड़ा बनकर करीब पड़े हुए अनार में घुस गई। वो अनार ऊपर उठना शुरू हुआ। भेड़िए ने पंजे मारे, अनार जमीन पर गिर पड़ा और टूटकर दाने बिखर गए। भेड़िया मुर्ग बनकर सबको खा गया। सिर्फ एक दाना हौज में गिर गया और मछली बनकर तैरने लगा। मुर्ग भी नाकू बनकर हौज में कूद पड़ा। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, सिर्फ इतना ही नजर आया, तमाम हौज के पानी में तलातुम मच गया और कुछ देर में वो तलातुम बंद भी हो गया और सामने दो शोले भड़कते हुए नजर आने लगे। गौर से देखा तो मालूम हुआ जिन और शहजादी शोला ज्वाला की सूरत में एक दूसरे के साथ जंग में मसरूफ हैं। हमारे करीब आकर आग इतनी बरसी के तमाम मकान में आग लग जाने का अंदेशा हो गया, लेकिन शहजादी इन शोलों को बराबर ठंडा करती रही। फिर एक चिंगारी मेरी आँख में गिर गई और आग बुझ गई। बादशाह और दूसरे लोगों पर भी शोले गिरे। हम इस मुसीबत से परेशान थे कि शहजादी अपनी असली सूरत में जाहिर हुई और कहने लगी कि जिनको तो मैंने जला दिया है, जल्द थोड़ा पानी लाओ ताकि इस बंदर को इसकी असली सूरत में ले आऊं, क्योंकि मेरा भी काम तमाम हो चुका है और चंद मिनट की मेहमान हूँ। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने उस पर दम करके मेरे ऊपर छिड़का तो मैं फौरन अपनी असली हालत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर हो गई। ये हालत देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खो बैठी है। बादशाह को भी बेहद सदमा हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नाजिल हुई, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब मैं तुम्हें देखूंगा तो जवान बेटी का गम ताज़ा हो जाएगा। चुनांचे मैं उसी वक्त रुकता हुआ वहाँ से चल दिया और कलंदर बनकर आज ही बगदाद में आया हूँ। अब जुबैदा ने उसका किस्सा सुनकर कहा, तुम्हारा कसूर माफ़ करती हूँ और तुम्हें इजाज़त है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने भी बाकी लोगों का हाल सुनने की इजाज़त चाही और एक तरफ खड़ा हो गया। एक तीसरा कलंदर उठा और अपनी दास्तान शुरू की।